So I'm going to start this chapter amine. Amine. ठीक है. So previously it was a large chapter, but its 30% part is reduced this year, that is benzene diazonium chloride part. So we will not discuss that part. So now it become the smallest chapter of this book. इस book का सबसे छोटा chapter ये है. Next week it will be over, that is 100% sure. Before next Saturday it will be over. So amines. Now the question is there that what are amines? Amines होते क्या हैं? What are amines? So see, when hydrogen of ammonia, one or more hydrogen of ammonia is displaced by alkyl group, when one or more than one hydrogen of ammonia is displaced by alkyl group, if one hydrogen will be displaced, it form RNH2. If two hydrogen will be displaced, then it form R2NH. And if three hydrogen will be displaced, it form R3N. So when one or more than one hydrogen of ammonia is displaced by alkyl group, then the formed तब बने हुए प्रोडक्ट को और कंपाउंड को कहते हैं अमाइन. AMINE, अमाइन. प्रोनाउंसिएशन अमाइन भी होता है और एमीन भी होता है. नाउ सी written, amines constitute an important class of organic compound derived by replacing one or more hydrogen atom of ammonia by group. मीन्स अमोनिया में से हाइड्रोजन that is called amine. So you have seen there are three. If one hydrogen will be displaced, RNH2, two hydrogen will be displaced, R2NH, and three hydrogen will be displaced, that is R3N. So amines are of three types. It is showing that amines are of three types. One, that will form by the displacement of one hydrogen by alkyl group. Two, that is formed by the displacement of two hydrogen by alkyl group. And three, that is formed by the displacement of three hydrogen. So these three amines are known as first degree amine or primary amine, second degree amine or secondary amine, and third degree amine or tertiary amine. Remember, primary, secondary, and tertiary pattern in amine is हेलो एरेन प्राइमरी, हेलो एल्केन प्राइमरी सेकेंडरी. एल्केन में जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कहा गया था, एल्कोहल में जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कहा गया था, अमाइन में जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है, ये तीनों अलग अलग हैं. और एल्कोहल में आपको कहा गया था कि हाइड्रोजन इज अटैच विथ फर्स्ट डिग्री कार्बन, that is primary amine. Halogen is attached with second degree carbon, that is means the degree is depend on the degree of carbon, but here the degree is not depend on the degree of carbon. Here the degree of amine is depend on the number of alkyl group attached with nitrogen. नाइट्रोजन से कितना अटैच है. If one alkyl group is attached with nitrogen, then that is first degree. कार्बन की डिग्री से यह मतलब नहीं है. Remember, there is no any relation between the degree of carbon and degree of amine. There is the relation between the number of alkyl group attached with nitrogen of amine. If one alkyl group is attached with nitrogen of amine, that is primary. If two alkyl group will be attached with nitrogen of amine, then secondary. If three alkyl group will be attached, then tertiary. Now let's, in this you can see one alkyl group is attached with nitrogen, so it is for
In this, one alkyl group is attached with nitrogen, so this is also first degree. In this, two alkyl group are attached with nitrogen, so this is second degree. In this, three alkyl group are attached with nitrogen, so this is tertiary, means third degree. So primary, secondary, tertiary और फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री यू कैन आइडेंटिफाई इजीली, बहुत आसानी से इसमें पता कर सकते हैं. देखिए, इफ NH2 विल बी रिटन इन द फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला में NH2 लिखा हुआ है कहीं पे भी, at any place, at any position, first carbon, second carbon, third carbon, at any carbon, if formula is having NH2, अगर फार्मूला के पास NH2 है, इट मीन्स वन एल्किल ग्रुप इज अटैच विथ नाइट्रोजन, इसका मतलब उससे एक एल्किल ग्रुप अटैच है, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, अब 2 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब एक चेंज हुआ है. सो दैट इज फर्स्ट डिग्री, मीन्स किसी भी फॉर्मूले में, अमाइन के फॉर्मूले में NH2 लिखा है, यू विल से इट इज फर्स्ट डिग्री, चाहे वो कहीं पे भी लगा हो, फर्स्ट डिग्री. NH लिखा है, will be second degree, कहीं पे भी हो second degree. and if only N is there, अगर केवल N हो तो वो third degree. see here, इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं. NH2 लिखा है, without any hesitation से, without any doubt से first degree. NH2 है, कहाँ है, कैसे, इससे मतलब नहीं है, NH2 है, it is first degree. NH लिखा है, second degree. केवल N लिखा है, थर्ड. इट इज अबाउट द डिग्री. दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन, अमाइन का स्ट्रक्चर. एंड द एंगल ऑफ अमाइन इज 108 डिग्री. रिमेंबर, अमोनिया का एंगल होता है 107 डिग्री. अमाइन का एंगल RNH2 का एंगल होता है 108 डिग्री, 108 डिग्री, विच कैन बी चेंज, वो चेंज हो सकता है. पहले से यहाँ पे है थर्ड डिग्री अमाइन की बात हो रही है, तो वो 108 है. प्राइमरी की कुछ और हो सकती है, सेकेंडरी कुछ और हो सकती है, बट दैट विल बी नॉट 107. 107 नहीं होगी. ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है. दिस इज व्हाट आई हैड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. प्राइमरी देखिए NH2 लिखा है तो प्राइमरी, NH लिखा है सेकेंडरी, एंड N लिखा है टर्शियरी. दो तरीका है पहचानने के लिए, NH2, NH या N. देखिए, या तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच विथ नाइट्रोजन, 3 एल्किल ग्रुप आर अटैच विथ नाइट्रोजन, सो थर्ड डिग्री. 2 एल्किल ग्रुप आर अटैच विथ नाइट्रोजन, सेकेंड डिग्री. 1 एल्किल ग्रुप अटैच विथ नाइट्रोजन, सो इट इज फर्स्ट डिग्री. एंड नो एल्किल ग्रुप इज अटैच, it is NH3, so that will be not amine, वो amine नहीं होगा, that will be ammonia. Now nomenclature, this is very interesting. Nomenclature, amine nomenclature हम पढ़ते हैं दो तरीके से, कॉमन nomenclature system and IUPAC nomenclature system. Common nomenclature system and IUPAC nomenclature system. So its nomenclature system is just like the ether. होता है. Voice and screen both are clear. Anyone please tell. Anyone please. Yes sir. Clear. Yes. Yes sir. Okay. Now see. Thank you. Now I am going to discuss the common nomenclature. Remember common name, not the IUPAC name. पहले common name देखेंगे, फिर IUPAC name. See common name. Common name में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 अमाइन है. तो पहले आप ये पता कर लीजिए कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है. देन आपको नाम इजी हो जाएगा. प्राइमरी अमाइन का नाम कैसे लिखते हैं? प्राइमरी अमाइन के नाम में एल्किल अमाइन लिखते हैं. एल्किल अमाइन, जो भी एल्किल ग्रुप है, दैट एल्किल ग्रुप
एंड उसके आगे अमाइन ऐड कर देते हैं, मेथिलमाइन, प्रोपिलमाइन, ब्यूटिलमाइन, पेंटिलमाइन, हेक्सिलमाइन, हेप्टिलमाइन, ऑक्टिलमाइन, नोनिलमाइन, डेकिलमाइन, जो भी ग्रुप है उसके आगे फर्स्ट डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री। अब सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री ध्यान दीजिए, सेकेंड डिग्री मतलब इसकी बात हो रही है विच इज हैविंग 2 एल्किल ग्रुप, जिसमें 2 एल्किल, तो जब 2 एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं देन वी विल राइट देयर नेम अकॉर्डिंग टू अल्फा, अल्फाबेट के बेस, on the basis of alphabet, the on the basis of alphabetic order, remember like alpha कहना चाह रहे हैं then C, ध्यान से देखिएगा, this is very important for second degree. first degree तो बिल्कुल easy है, alkyl amine. now see second degree, second degree like ये लिखा हुआ है CH3 NH and C2H5, so you can see कि it is secondary amine, सेकेंडरी अमाइन है। कैसे? क्योंकि इसमें एक तरीका ये कर समझ सकते हैं कि NH है, और सेकेंड आप ये कर सकते हैं कि बिकॉज 2 एल्किल ग्रुप आर अटैच विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वन साइड द एल्किल ग्रुप इज, एक कार्बन है मिथाइल, एक साइड एल्किल ग्रुप है मिथाइल, एंड सेकेंड साइड एल्किल ग्रुप इज इथाइल, सेकेंड साइड एल्किल ग्रुप क्या है? इथाइल। सो एक मिथाइल एक इथाइल है, सो यू विल नॉट राइट द नेम, इन कॉमन नेम की बात हो रहा है, नॉट राइट द नेम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के बेसिस पे नहीं जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इट्स इथाइल स्टार्ट विथ ई, इट्स मिथाइल स्टार्ट विथ एम, तो पहले ई आएगा कि पहले एम आएगा? देन फर्स्ट ई विल कम, सो पहले आप लिखेंगे इथाइल, पहले एक एल्किल ग्रुप का नाम, देन उसके आगे सेकेंड एल्किल ग्रुप का नाम मिथाइल, एंड द लास्ट वर्ड विल बी अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब नहीं है, नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है इससे मतलब है, लाइक वन साइड इज CH then NH, another side is C3H7, C3H7, so it is methyl M, it is 3 carbon, प्रोपाइल, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपाइल और प्रोपिल, जो भी आपने प्रोनाउंस किया होगा। सो इट इज स्टार्ट विथ P, इट इज स्टार्ट विथ M, सो LMNOP, M कम फर्स्ट, P कम्स लेटर, M पहले आया P बाद में आया, ठीक है? सो पहले M वाले का नाम लिखेंगे, मीन्स मिथाइल, देन प्रोपाइल, एंड देन ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, इट्स नेम, सॉरी ईथर कहाँ से लिख दिए, अमाइन, मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। सो दिस इज द कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री में ऐसे लिखना है, फर्स्ट डिग्री में तो एल्किल अमाइन, सेकेंड डिग्री में यू नीड टू राइट इन दिस वे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एल्किल ग्रुप का नाम पहले, देन सेकेंड एल्किल ग्रुप, देन लास्ट वर्ड विल बी अमाइन। एंड अगर थर्ड डिग्री अमाइन होगा मीन्स 3 एल्किल ग्रुप विल बी पैटर्न इज सेम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तब भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे, लाइक दिस, ये C2H5 और यहाँ हो गया C3H, ठीक है? देन
one side is methyl, start with M, another side is ethyl, start with E, and another side is propyl, start with P. तो पहले आएगा E, so you will write ethyl, ठीक है. Then M means methyl, and then आएगा P, प्रोपाइल, और लास्ट में अमाइन. सिंपल सा नाम से भी देखिए पहचान जाएंगे. 3 एल्किल लिखा होगा, इसका मतलब 3 एल्किल अटैच हैं. सो इट इज इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक इथाइल अटैच है, एक मिथाइल, एक प्रोपाइल, में 3 एल्किल ग्रुप आर अटैच. सो इट इज 3rd डिग्री अमाइन. If all the alkyl group will be similar, अगर जैसे सेकेंड डिग्री हम लेते हैं, सेकेंड डिग्री में एल्किल ग्रुप सिमिलर है, CH3 ही दोनों साइड है, तब कैसे लिखेंगे? देन वी विल राइट नॉट राइट द नेम ट्वाइस कि मिथाइल मिथाइल, तब हम 2 बार नाम नहीं लिखेंगे मिथाइल मिथाइल. वी विल राइट डाई मिथाइल. 2 बार मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देंगे डाई मिथाइल मिथाइल अमाइन. Dimethyl amine is saying that 2 methyl group is attaching among the second degree, means 2 alkyl group. And if it is 3rd degree, अगर ये 3rd degree होगा, then 3 alkyl group will be attached. अगर तीनों सेम है, डिफरेंट रहेंगे तो आपको बता दिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करिए. एंड इफ ऑल आर सिमिलर, सो 3 के तीनों मिथाइल हैं, सो वी विल राइट ट्राई मिथाइल. मिथाइल amine, trimethyl amine. So this is the pattern of common nomenclature. Common nomenclature की बात हो रही है, सिस्टम की बात अभी नहीं हुई है, इसकी बात नहीं हुई है, कॉमन नोमेनक्लेचर की. अगर फर्स्ट डिग्री है तो एल्किल अमाइन लिखते हैं, अगर सेकंड डिग्री है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एल्किल का नाम लिखते हैं एंड लास्ट में अमाइन लिखते हैं. दैट इज और सेकंड डिग्री और 3rd डिग्री, वो चाहे सेकंड डिग्री हो चाहे 3rd डिग्री हो. सो दिस इज अबाउट द कॉमन नोमेनक्लेचर. इफ यू विल से सी टर्ट ब्यूटिल, दिस इज 3rd डिग्री. इथाइल मिथाइल पहले इथाइल, एंड सेकेंडरी ब्यूटिल, एक साइड सेकेंडरी ब्यूटिल है, एक साइड मिथाइल है, एक साइड मिथाइल है, 2 मिथाइल है, सो डाई मिथाइल अमाइन. ये कॉमन नेम है, ठीक है. अब आता है आयु. व्हाट इज द पैटर्न ऑफ IUPAC नेम? देन सी द पैटर्न. IUPAC नेम का तरीका देखिए. फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड 3rd डिग्री में, ठीक है. नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, CH3 NH2, दिस इज फर्स्ट डिग्री. तो इसका कॉमन नाम क्या लिखते हैं? मेथिल अमाइन. कॉमन नेम इज मेथिल एंड व्हाट विल बी इट्स IUPAC? IUPAC नेम में एल्केन अमाइन हैं, एल्किल नहीं, एल्केन. जो यहाँ एल्किल है, इसको एल्केन कह देंगे. सो मेथिल को क्या कहते हैं? मिथेथिल को इथेन, प्रोपिल को प्रोपेन, ब्यूटिल को ब्यूटेन, पेंटिल को पेंटेन. सो एल्किल के जगह पे एल्केन लिखते हैं IUPAC नेम में. सो इट इज मीथेन. सो इट्स नेम विल बी मीथेन. मीथेन में ANE है, ई हटना, मिथेना, मिथेना मीन. It is IUPAC name, methenamine.
एंड दिस इज कॉमन नेम फॉर फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री के लिए कॉमन नेम होता है एल्किल अमाइन, एंड आईयूपीएसी नेम में एल्किल की जगह एल्केन लिखते हैं तो एल्केन अमाइन हो जाता है, एल्केनामाइन। नाउ सेकेंड डिग्री में ध्यान दीजिए, सेकेंड डिग्री में लाइक इफ दिस इज सेकेंड डिग्री, अगर यहाँ पे हम सेकेंड डिग्री लिख देते हैं NH एंड C2H5, C2H5 यहाँ पे ऐड कर दिए, ये NH है। सो IC alphabetical order, one side is ethyl, one side is methyl, so its name was there ethyl methylamine, इसका नाम क्या था, इथाइल मेथिलामाइन। दिस इज कॉमन। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाता है, आईयूपीएसी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखते हैं, रिमेंबर आईयूपीएसी में नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, दैट विच विल हैव द मोर कार्बन, जिसके पास ज्यादा कार्बन होगा दैट विल बी मेन चेन, वो मेन चेन होगा, जिसके पास कम कार्बन होगा दैट विल बी साइड चेन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मतलब नहीं है। इन आईयूपीएसी नेम देयर इज नो एनी रिलेशन विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, द रिलेशन इज विद द नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन। अगर दोनों में बराबर है तो कोई भी ले सकते हैं, इफ बोथ आर डिफरेंट सो हायर वन विल बी मेन चेन, पेरेंट चेन, एंड स्मॉलर कार्बन विल बी द साइड चेन। पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, साइड चेन का जो नाम लिखते हैं वो N के साथ लिखते हैं, बिकॉज दैट इज अटैच विथ नाइट्रोजन, सो लिखते हैं N मिथाइल, N मिथाइल। एक कार्बन की चेन छोटी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं जानना है। N मिथाइल मतलब बता रहा है मिथाइल नाइट्रोजन से अटैच्ड है, N मिथाइल। एंड देन आफ्टर मेन चेन का नाम, मेन चेन का नाम इथेन, और उसमें अमाइन ऐड कर देंगे, मेन चेन के नाम में सफिक्स जोड़ देंगे अमाइन, सो इथेनामाइन और इथेनामीन, इथेनामाइन और इथेनामीन। सो इट्स इथेनाम, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एन मिथाइल इथेनामीन, एंड कॉमन नेम होगा एथिल मेथिल, एथिल लिखे बाद में मेथिल, एंड आईयूपीएसी नेम में नंबर ऑफ कार्बन यूज कर रहे हैं तो पहले मिथाइल आया बाद में इथेन आया। सो सी दिस, अब इसको देखिए, ठीक है, एथिल अमाइन कॉमन नेम, ये एथिल अमाइन कॉमन नेम है, ये इथेनामीन आईयूपीएसी नेम। एन प्रोपिल अमाइन कॉमन नेम है, प्रोपेनामीन आईयूपीएसी नेम। आइसोप्रोपिल अमाइन कॉमन नेम है, देखिए इसमें सब में इल लगा है, इसमें एल्केन लगा है, प्रोपेनामीन, दैट इज आईयूपीएसी नेम। एथिल मेथिल अमाइन एन मेथिल इथेनामीन, यही अभी आपसे डिस्कस हुआ। मेथिल ग्रुप है, एन एन डाई मेन चेन हो गई थर्ड डिग्री में, बाकी दो साइड चेन, दोनों साइड चेन डाई मेथिल मिथेनामाइन। इसमें भी दो साइड चेन और सबसे ज्यादा कार्बन वाली मेन चेन, सो एन एन डाई इथाइल ब्यूटेनामीन, यहाँ पे कॉमन नेम है, यहाँ पे सेम इज हियर, दैट इज एलिल अमाइन एंड हेक्सामेथिलामाइन। तो आप इसको आज पढ़ लीजिएगा यूपीएससी ने अपने बुक से भी, देन टुमारो वी विल स्टार्ट, ये भी यूपीएससी ने ये यूपीएससी ने, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। सो यूपीएससी नेम हियर preparation. So in amine, the introduction is over, classification is over, and IUPAC and common nomenclature is over. So now I'm going back in team app.
I'm going back in Team app. Please write here all the topics are clear or not. If not clear, we will discuss tomorrow once again if any topic is not clear. But please revise it because today less students are here, so I don't want to teach so much. So they will be not understand. So nomin at